हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर अनिता की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। We were doing chapter number 2. We completed 40 shlokas. 40 श्लोका हमने discussion complete किया है. So we will move further without delay today. We are dealing with the section from shloka number 39 to 53. So this section is called Nishkama Karma Yoga. The action without aspiring for the fruits. Krishna has brought Arjuna stepwise from Karma Kanda to Karma Yoga, and now he is going to talk about Nishkama Karma Yoga. And this section is also called Buddhi Yoga, which basically deals with bhakti aspect of the yoga. So we completed a very important shloka. एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका हमने पिछले सत्र में कंप्लीट किया. Freedom from fear, Neha Bikramo Nashosti. And yesterday being Gita Jayanti, I hope you all were able to listen to the Bhagavad Gita shlokas, the links for which I had sent. And also I've sent you a PDF document of the Bhagavad Gita shlokas, so that when you attend this session, you can have that sheets with you, or you can have Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita as it is, Prabhupada Ji ka. If you have with you the 1972 edition, that's even better. So we'll move further. I will display to you the first few shlokas. What we are doing now, the section, जो अभी section हम cover करने वाले हैं, this part's the crux of Bhagavad Gita. मतलब ये core बन जाता है Bhagavad Gita ka. We will go a bit slow on this section. We'll go slightly in detail, and we will try to do it in a question answer format, so that for better understanding. तो हर line में हम एक question पूछ सकते हैं और उसका उत्तर हमें मिल सकता है यहाँ के बाद वाले श्लोकास में. So श्लोका number 41. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो vyavasayinam. Word called vyavasayatmika is being introduced here, which basically means just like agriculture, meticulously or resolute. Sthira, we can say sthira buddhi. जो खेती बाड़ी में जब हम एक स्ट्रीमलाइन की तरह काम करते हैं तो उसको व्यवसाय बोलते हैं. तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि. So व्यवसायात्मिका means resolute Krishna consciousness, and eka iha Kuru Nandana, only one in this world, O beloved child of Kurus. Arjun is being addressed to. Bahushakha hi anantascha, various branches, unlimited, anantascha. Buddhaya avyavasayinam, the intelligence of a person who are not in Krishna consciousness. So those who are on this path are resolute in purpose. जो इस पथ पे हैं वो दृढ़ निश्चय से इस पथ पे आगे चलते हैं. And their aim is one, eka iha, और उनका लक्ष्य एक ही है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति. O beloved child of Kurus, Kuru Nandana, the intelligence of those who are irresolute is many branched. Bahushaka hi hanantascha. किसका? बुद्धयो अव्यवसायिना, जो कृष्ण भावनामृत प्रज्ञा नहीं रखते, उनका मन भटकता रहता है. लेकिन जो व्यवसायत्मिक बुद्धि, जो कृष्ण भावनामृत में अपना सेवा अर्पित कर रहे भगवान कृष्ण को, उनको लक्ष्य बना के, तो उनका एक ही लक्ष्य है, वो भगवान श्री कृष्ण. So a strong faith in Krishna consciousness, that one should be elevated
to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. तो व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होता है? It is strong faith, दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा किसके ऊपर और किस चीज के ऊपर? That one should elevate to the highest perfection of life. आध्यात्मिक जीवन में अति उत्तम स्तर पे हमें पहुंचना है. So in Chaitanya Charitamrita, so in a very recommended series of books called Chaitanya Charitamrita, it is written Shraddha Shabde Vishwasa. So again the word Shraddha is being used here. Kahe Sudhrada Nishchaya. One more word, Sudhrada, determined is coming. Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Kruta Hayaha. So faith means unflinching trust. मतलब ऐसा विश्वास जो विचलित नहीं होगा, उसको श्रद्धा बोलते हैं. एंड किसके ऊपर श्रद्धा? इन समथिंग सब्लाइम, जो हमें आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ाएगा, उसको हम बोल सकते हैं सब्लाइम. When one is engaged in duties of Krishna consciousness, जब कृष्ण भावनामृत प्रज्ञा से हम कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, गुरु के लिए सेवा करते हैं, he need not act in relationship to the material world with obligations. तो हमने पिछले सत्र में हमने ये निष्कर्ष किया कि कैसे ऋण मुक्त हो जाता है कृष्ण भावनामृत में जो आ जाता है, क्योंकि जब हम कृष्ण को संतृप्त करते हैं, सारे लोगों को संतृप्त करने जैसा हो जाता है. जैसे हम पिछले सेशन में डिस्कशन किया था, हाउ व्हेन वी वाटर द रूट ऑफ अ ट्री, then the water from the root is being distributed to the leaves, the branches automatically. You don't have to do anything extra for it. तो ठीक वैसे ही जब हम तरोर मूल निषेचनेन, जैसे कि हम पेड़ के या पौधे के लिए पानी डालते हैं और वहां से वो रूट से पत्ते तक, शाख तक जाता है पानी अपने आप, ठीक वैसे ही जब हम कृष्ण भक्ति में हमारा जीवन निरूपित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बाकी सारे ऋण हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि जब कृष्ण संतुष्ट हो जाता है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, तो कृष्ण को तुष्ट करने से सारे जगत को तुष्ट करने जैसा हो जाएगा. जैसे कि पेट में खाने देने से पूरा शरीर में शक्ति आ जाता है. So just like when we eat and give the food to stomach, but the strength is distributed to the body. So likewise, when we worship Krishna, then we're actually adoring and worshipping and taking care of all our obligations. Fruitive activities are the engagement of one's reactions from past deed or bad deeds. तो कर्म अपेक्षा से जब हम काम करते हैं, कर्म फल के हम जब अपेक्षा करते हैं, ये बुद्धि कहाँ से आया? हमारे पूर्व कर्मों से. अच्छे कर्म बुरे कर्म सब मिलके इस जन्म में हमको कुछ स्थिति में डाल दिया है. When one is awake in Krishna consciousness, जब कृष्ण भावनामृत में कोई जाग जाता है, he need no longer endeavor for good results in his activities. तो अच्छे कार्यों के लिए अलग सा उसको कार्य करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane. So why is it not necessary to endeavor for good results? Because it is automatically coming as a package when we are doing service to Krishna. तो जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तो अपने आप सारे अच्छे गुण भी आ जाते हैं और अच्छे जो परिणाम है वो हमारी जिंदगी में आ जाता है. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. So, what is the topmost place of Krishna consciousness? What is the topmost plane we can reach when we become completely free of material conception of life? जब भौतिक दृष्टिकोण हमारे अंदर नहीं रहता है, तो हम कृष्ण भावनामृत के अति उच्चतम स्तर पे पहुंच गए. So it is also a test for us. Are we Krishna conscious?
how Krishna conscious we are, we have to introspect and see how much material desires are there in us. Whatever activities we are doing, how much swarth is there in us. Are we doing it for ourselves? Are we doing it for the pleasure of Krishna? कृष्ण के तृप्ति के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं क्या? हम स्वयं तृप्त होने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? भौतिक दृष्टिकोण कितना है हमारे अंदर, ये मापदंड होता है कृष्ण प्रज्ञा में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं ये देखने के लिए. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of material conception of life. तो ये भौतिक दृष्टिकोण कब मिट जाएगा, उसके लिए अलग सा क्या करना है? कुछ नहीं करना है. जब कृष्ण भावनामृत में हम आगे बढ़ते रहेंगे, जब शुद्धता हमारे अंदर आता रहेगा, वो स्वयं हमारे अंदर से मिट जाएगा. जब हम कोई लाइट डालते हैं तो अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसके लिए अलग सा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. अब लाइट तो आ गया तो अंधकार को कहाँ भेजे, अंधकार तो अपने आप चला जाएगा. So Krishna is the root of all manifested causes. सर्व कारण कारणम, और सबका सारे जीव जंतुओं का कारण भी भगवान श्री कृष्ण है. जो संदर्भ हमारे जीवन में आ रहे हैं वो भी कृष्ण के नेतृत्व से ही हो रहा है. As the water on the root of a tree is automatically distributed to the leaves and branches, in Krishna consciousness one can render highest service to everyone. तो जब कृष्ण भावनामृत में हम काम करेंगे तो हम मानव कुल, पूरे मानव कुल के लिए, प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, सिर्फ केवल मानव कुल के नहीं, सारे जीव जंतु जीव राशि इस जगत में कोई भी है, उनका हाईएस्ट सर्विस हम दे रहे हैं, उनके लिए हम उच्चतम सर्विस सेवा हम प्रदान कर रहे हैं. सो कृष्णा is satisfied. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. Tasmin tushte jagat tushta. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master. तो पहला एक प्रश्न उठ सकता है, लोग जब सब कुछ छोड़ के कृष्ण भावनामृत संस्था में ज्वाइन करते हैं ब्रह्मचारी बन के, तो क्या वो अपने माँ बाप को मतलब निर्लक्ष्य कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जब कृष्ण भगवान को पता चलेगा कि ये जो आत्मा है, ये व्यक्ति है, ये सब कुछ छोड़ के मेरे सेवा में आ चुका है, तो कृष्ण भी बद्ध हो जाता है उस जीव के प्रति और उसके परिवार के प्रति. जैसे कि लाइक अ गवर्नमेंट सर्वेंट, the government servant is taken care of by the government, but his family is also given full support by the government. In case something happens to him, God forbid, अगर कोई सरकारी नौकर को कुछ हो जाता है तो सरकार उसकी देखभाल कर देता है. सो ठीक वैसे ही जब कृष्ण के लिए हम सेवा प्रदान करते हैं तो कृष्ण ऑब्लिगेटेड हो जाते हैं कि अरे ये सब कुछ छोड़ के मेरे सेवा में आ चुका है, इनके माँ बाप है, इनका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, ये सोचता है श्री भगवान कृष्ण. सो एंड कैसे हम कृष्ण भावनामृत में उत्तम सेवा प्रदान कर सकते हैं कृष्ण को? अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. तो आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से हम कृष्ण सेवा जब हम करते हैं तो हम सही रास्ते में जा रहे हैं. One should accept the instruction of a bona fide spiritual master as one's mission in life. गुरु का आदेश को, गुरु का जो प्रवचन है, शब्द है, उसको जीवन का लक्ष्य मान के हमको जीवन बिताना है. प्रभुपाद भी, what is the basis of all the ISKCON centers that has come up? The basis of all ISKCON centers is Prabhupada's only one mission of life, to fulfill the desire of his guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He had only one desire, I must fulfill desire of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. केवल Bhaktisiddhanta Saraswati ठाकुर जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उनका जो संकल्प था उसको पूर्ण करने के लिए, उनका आदेश को पूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद वृद्ध आयु में अमेरिका गए और जादू करके दिखा दिया. आज हम भगवद गीता के ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं, निष्कर्ष कर रहे हैं,
वो किसके बदौलत हुआ है? श्रीला प्रभुपाद की बदौलत है। अब सब बैठे अपने अपने घर में, हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं, चंद्रोदय मंदिर, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जाते हैं जो प्रभुपाद का इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप का है। तो ये सब हमें कैसे मिला? ये सब श्रीला प्रभुपाद जी से हमें मिला। सो दैट इज व्हाट अ स्पिरिचुअल मास्टर डज व्हेन ही एंटर्स आवर लाइफ। वो सारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरुवाष्टक में बोलते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादं न गति कुतोपि, ध्यायान् स्तुवं तस्य त्रिसंध्यां, यशस्त्रिसंध्यां, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। So by satisfaction of spiritual master, the supreme person of Godhead becomes satisfied. Yasya prasadat bhagavat prasado. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. Yasya aprasadam nagati kutopi. गुरु को हमने संतुष्ट नहीं किया तो और कोई गति है नहीं। गुरु को संतुष्ट करने का गति ही कृष्ण प्राप्त हो जाएगा हमको। So we should pray for his mercy 3 times a day. Dhyayam stuvam tasya yashas trisandhyam. 3 times in a day, we must glorify the spiritual master. So one who is not firmly fixed in the mind is diverted by various types of fruitive activities. जो मन स्थिरता में नहीं है, जो एक लक्ष्य पकड़ के जीवन नहीं बिता रहा है, या कोई भी प्रोजेक्ट हम लेंगे उसके ऊपर हम पूरा हमारा मन नहीं लगाएंगे, इधर उधर हमारा मन भटकता रहेगा, तो यशस हमें शायद नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहु काल के बाद मिलेगा। So what we are learning in this particular shloka which we just did now is buddhi has to be one pointed, single pointed focus. We have to exam के समय exam के लिए हमें prepare करना चाहिए. We have to prepare for exams during exam time. So everything has its place. So determination. What is determination? निश्चय. इसका एक beautiful acronym है. Distilled desire, directed decisively. 4 D's है. Distilled मतलब purified, desire और कहाँ कैसे है ये डिजायर, ये इच्छा कैसा है? डायरेक्टेड डिसाइसिवली मतलब दृढ़ संकल्प से, निर्धारित रूप से जब हम मार्गदर्शन के साथ हम कोई कार्य करते हैं शुद्धता से, तो वो डिटर्मिनेशन है, दैट इज निश्चय। एंड दोस हु कमिट टू नथिंग आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। हमने देखा है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा बुद्धि रखने वाले जिंदगी में शायद ही कुछ अचीव कर पाएंगे। एंड इवन इफ यू कांट बी स्पिरिचुअली जॉयफुल, तो हम ये पूछ सकते हैं कि प्रभु जी शुद्धता का जो मापदंड है, जब हम जपा करते हैं तो हमें जॉयफुल होना चाहिए, कृष्ण का सेवा जब हम करते हैं जॉयफुल होना चाहिए, लेकिन हम तो एक मतलब कार्य की तरह इसको करते हैं, क्या करें? कोई बात नहीं है, प्रभुपाद जी भी अनेक जगह पे बोलते हैं कि यू मस्ट सिंपली डू योर ड्यूटी, डू नॉट वरी अबाउट दिस माइंड सेट एंड ऑल राइट नाउ। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र नाइसली, वेरी सिंसियरली, द चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र इटसेल्फ विल प्यूरिफाई अस। तो उसके लिए अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुरु का मार्गदर्शन है उसके ऊपर श्रद्धा से चलना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन पे, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए श्रद्धा से, हरे कृष्णा मंत्र जपा कीजिए श्रद्धा से। मन इधर उधर भटक रहा है, कोई बात नहीं, माइंड इज लाइक ए मंकी। बंदर का क्या स्वभाव है? एक जगह बैठता नहीं है, इधर उधर डोलता रहता है, तो हमें उसको पकड़ के खींच के हरे कृष्णा मंत्र के ओर हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए। सो डिटर्मिनेशन therefore means to subordinate pleasure to purpose। हम एक लक्ष्य लगा के बैठे हैं और कुछ हमें इंद्रिय तृप्ति का मौका मिल रहा है, तो हमें सोचना चाहिए इस वक्त मैं ये करूंगा तो मेरे जो लक्ष्य है उसको इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे वो कार्य नहीं करना है। ये निश्चय है, दिस इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स योर पर्पस
takes precedent over pleasure. When we were all students, many of you may still be studying. During exam time, what to do? No cricket match, no movies. We do that. We take that austerity, and that is determination, where we are choosing purpose over pleasure. मतलब इंद्रिय संतृप्ति के ऊपर हमने हमारा लक्ष्य को रख दिया, तो उस समय तो हम एटलीस्ट हमारे मन को इधर उधर नहीं भटकाएंगे. So our attention usually follows our intention. तो हमारे जो संकल्प है उसके पीछे हमारा जो attention है, जो हमारा एकाग्रता है, उसके पीछे भागता है. That's why we must always have goals. Even in spirituality, we must have goals. हमारा लक्ष्य रखना चाहिए. आज मैं इतना पढ़ूंगा, आज मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनूंगा, आज मैं 16 माला जपा करूंगा और इतने समय में मैं कर दूंगा. So this kind of spiritual goals we must set, because the intention, the attention will follow the intention. एकाग्रता संकल्प के पीछे हमेशा रहता है. So if you are not fixed in a worthy aim, अगर हमारे जिंदगी में कोई valuable लक्ष्य नहीं है, we can get misdirected in countless ways. तो हमारे जीवन में अगर कोई लक्ष्य हम नहीं रखते तो हजारों लाखों तरीका है मन को इधर उधर भटकाने का. मन तो चला ही जाता है, वो बंदर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा. So we must keep our mind on one track, but we must not have a one track mind. हमारा लक्ष्य एक पटरी की तरह होना चाहिए. But there is also something called as one track mind. वो अलग होता है. वन ट्रैक माइंड है, वो चाहे कोई कुछ भी बोले मैं यही करूंगा. दैट इज वन ट्रैक माइंड. उनका सोच भी ऐसा ही है, सब कुछ घूम फिर के वो उनका सोच भी ऐसे हो जाता है. दैट इज वन ट्रैक माइंड. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट. वी आर टॉकिंग ऑफ आवर माइंड शुड बी ऑन वन ट्रैक. एकेह कुरुनंदना. एंड दैट वन ट्रैक, कौन सा ट्रैक होना चाहिए? कृष्णा का ट्रैक होना चाहिए. दैट शुड बी द ट्रैक ऑफ कृष्णा. So distractions dissipates determination. बहुशाखा अनंताश्च. जो निश्चय है वो हमारे मन को भटका देता है, हमारे शक्ति को मतलब क्षीण कर देता है. So we must be careful. We must not get distracted from our goals. We will move on to sloka number 42 and 43 are together. I'll display this on your screen. I'll not display all shlokas, some key shlokas only I'll be displaying like this. So these are two shlokas together. Ya imam pushpitam vacham pravadanti avipaschitah vedavadarata partha nanyadastiti vadinah कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति. या इमाम, ये सारे ऑल दिस पुष्पितम वाचम, फ्लावरी वर्ड्स. कौन सा फ्लावरी वर्ड्स? वी विल रीड इन द परपट. प्रवदंती अविपश्चितः, से men with poor fund of knowledge. विपश्चितः मतलब person having good knowledge. Avipaschitah, poor fund of knowledge. Veda vada rataha, supposed followers of Veda. Veda vada के पीछे जो भागते रहते हैं. पार्था न अन्यत अस्ति इति वादिनः. So वो बोलते, they advocate that there is nothing else except what is given in Vedas. The flowery words of Vedas. Kamatmana, desirous of sense gratification. Swargaparaha, aiming to achieve heavenly planets. एक ही लक्ष्य है, स्वर्ग के लिए जाना है. तो ऐसे लोग, अविपश्चित लोग, जन्म कर्म फल प्रदान, resulting in fruitive action, good birth, क्रिया विशेष, pompous activities, बहुलाम, अनेक रीति रिवाज को मानना, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के प्रति वो भागते रहते हैं. So men of small knowledge
जो अविपश्चित है, अल्प बुद्धि जो रखते हैं, आर वेरी मच अटैच टू फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास। तो वो वेद का जो पुष्पित वाचा, जो चुपड़े चुपड़े वर्ड्स है, जो आपको स्वर्ग के ओर ले जाने का वादा करता है, ऐसे जो रीति रिवाजों के ऊपर उनका संकल्प रहता है, उनका पथ रहता है, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets. So a portion of Vedas called the Karma Kanda, especially that is being talked about. Not all Vedic words are flowery words. मतलब आपको बोलते हैं ना, उठा देते हैं हमें, मतलब ऊंचा उठा देते हैं. It is not that kind. Not all Vedic verses are like that, but there is a portion called Karma Kanda. तो इन कर्म कांडा it talks about how to attain heavenly planets. आप ये करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप ये करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अनेक रीति रिवाज दिया है. तो रिजल्ट एंड गुड बर्थ, स्वर्ग मिलेगा, आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अगले जन्म आपको शक्ति मिलेगा, पावर, स्थान मिलेगा, मान मिलेगा, एंड सो फोर्थ. ऐसे being desirous of sense gratification, तो इंद्र तृप्ति को पाने के लिए, and opulent life, ऐश्वर्य पाने के लिए, they say that there's nothing more than this. वो बोलते हैं इससे ज्यादा क्या चाहिए जिंदगी में, ऐश्वर्य और भोग के लिए वस्तु है जब हमारे पास है. So people in general are not very intelligent in कलयुग. कलयुग में प्रारंभ में तो वेदों को सिर्फ कर्मकांड पोर्शंस का वो उपयोग करते थे, आज तो वो भी नहीं करते हैं आजकल. So fruitive activities recommended in the Karma Kanda portions of Vedas, that is being called as flowery language. क्या बोलते हैं? Pushpitam Vacham. So Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to heavenly planets. अनेक होमा यज्ञ है वेदा में उल्लेखित है कर्म कांड में, जहाँ जो वादा करता है कि ये करने से आपको स्वर्ग मिलेगा. Especially a group of sacrifices called Jyotishtoma. ज्योतिष्टोमा यज्ञ जो स्वर्ग के ओर लेके जाता है. It's very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. तो ऐसे लोगों का हालत क्या हो जाता है? ऐसे लोग, why Krishna is saying avipashchitaha, they are doing good things. Why they should be called less intelligent or not intelligent? Because they cannot be determined in action of Krishna consciousness. वो कृष्ण की ओर नहीं जा पाते हैं, वो इसी में उलझ जाते हैं. स्वर्ग पाना है, अच्छे जन्म पाना है, ऐश्वर्य पाना है. Fools are attached to the words of poisonous, to the flowers of poisonous trees. जो मूर्ख होता है वो विषैला पेड़ के पुष्पों के बीच पीछे भागता है, वो मर सकता है ऐसे करते करते. Similarly, unenlightened men are attracted by such heavenly opulence. Swargapara, Swarga jana hai. So we know a certain kind of religion where it is being thought that if you do this, आप जन्नत के ओर जाएंगे और आपको 72 virgins मिलेंगे. Of course, it is not the correct thing that is being taught nowadays to this group of people. Actually, उस ग्रंथ में सिर्फ इसके बारे में नहीं बात किया है, लेकिन like many people taking pushpitam vachas from Veda, some people conveniently take those portions of that scripture and talk like this. तो कर्मा कांड में those who perform 4 monthly penances become eligible to drink so marasa beverages to become immortal and happy forever. जो चातुर्मास्या कर्म कांड रीति से करते हैं, जो हम चातुर्मास्य करते हैं वो भक्ति पथ के रीति रिवाज से हम करते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से हम करते हैं. लेकिन कर्मकांड से भी हम कुछ लोग, अविपश्चिता लोग चातुर्मास्य करते हैं इंद्र सुख पाने के लिए, अच्छे जन्म पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए. तो और एक जन्नत जैसा जगह भी है जिसका नाम नंदकानना है. So it's called Nandakanana, where there is a good opportunity for association with angelic beautiful women. तो एक बहुत अति सुंदर नारियों के साथ संपर्क करने का, उनके साथ
खुश रहने का मौका मिलेगा ये सब करने से. So and having a profuse supply of सोमरसा wine, तो सोमरस पी के वो आनंद और आनंद में रह सकते हैं. So अविपश्चिता is one who does not have discrimination, जो अल्प और बहु की जो विशेषता है, जो डिफरेंशिएशन है, नहीं जानता है, उसको अविपश्चिता बोलते हैं. जो सही गलत नहीं जानता है वो उसको मूर्ख बोलते हैं. जो कम और ज्यादा के फर्क नहीं जानता है उसको अविपश्चिता बोलते हैं. तो कर्मकांडा इज मेटीरियल. तो जब हम कर्मकांडा पोर्शन फॉलो करेंगे, व्हेन वी फॉलो कर्मकांडा, वी कैन से दैट दे आर एनीवे डूइंग गुड थिंग्स. व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? अच्छे तो कर्म कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, इंद्र पूजा, वायु पूजा, नव होम, नवग्रह पूजा कर रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर्स. तो सब कुछ भौतिक इंद्रिय संतृप्ति के लिए ये सब कार्य करते हैं. सो मटेरियलिज्म इन ए रिलीजियस कॉस्ट्यूम और रिलीजियस गार्ब इज स्टिल मटेरियलिज्म. कोई भी हम कार्य कर रहे हैं भौतिक स्तर पे इंद्रिय तृप्ति के लिए, अगर हमने उसको आध्यात्मिक का मुखवाड़ दे दिया, मास्क दे दिया, लेकिन ये तो छुपा नहीं जा सकता कि वो फिर भी मेटेरियलिस्टिक है, भौतिक है. सो व्हाट इज स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल इज समथिंग दैट विल टेक अस टुवर्ड्स कृष्णा. दैट इज स्पिरिचुअल. समथिंग दैट टेक्स यू टू गोलोक वृंदावन. दैट इज स्पिरिचुअल. आध्यात्मिक क्या है? कृष्ण की ओर जो भी कुछ हमें लेके जाते हैं, जो भी कार्य, जो भी एक्शंस, जो भी whatever actions that take us towards Krishna, to Goloka, that is called as adhyatmic. And anything else is basically bhautik only, because it will keep us within this material world. So as long as our functional core identity differs from our constitutional core, we stay in delusion. So 43, we are seeing that what is the words being used? Kamatmana swargapara kriya vishesha bahulam. So भोगैश्वर्य गतिम प्रतिम. So the functional identity, भौतिक जो दृष्टिकोण है अभी, अगर वो हमारे आध्यात्मिक जो हमारा एटर्नल पोजीशन है उसे मिसमैच हो जाता है तो हम भ्रमित ही रहते हैं, इस भौतिक जगत में भटकते रहते हैं. So worldly desires are like gravity. तो ये एक तुलना किया गया है कि भौतिक जो हमारे आशाएं हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो भी योजना बना रहे हैं, वो ग्रेविटी की तरह है. ग्रेविटी के काम क्या है? टू कीप अस ग्राउंडेड, इस भूमि पर ही रखना, और हम ऊपर उड़ेंगे तो हमें नीचे खींच के लेके आएगा. So similar to that, any material desires we harbor, it's like gravity which pulls us down. We are trying to go elevate ourselves in Krishna consciousness. It pulls us down to material platform. So we must be very careful, and we must try to overcome as many material desires, if not all, as soon as possible. And that is possible by chanting Hare Krishna mantra and doing devotional service to Krishna. कृष्ण भक्ति में हमें कार्य करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जपा करना चाहिए, तो धीरे धीरे भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति का वासना हमारे अंदर है वो अपने आप मिट जाएगा. सो प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है? शुद्धिकरण का मतलब क्या है? फंक्शनल कोर इज इन सिंक विद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर. हमारा स्वधर्म, हमारे नित्य धर्म जब एक हो जाएगा, मतलब हम स्वधर्म करते करते हम नित्य धर्म के और जब चले जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज टू बी इन सिंक. सो भक्ति योगा प्यूरिफाइज अस. जो भक्ति योग में हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें शुद्ध करता है. फॉर एग्जाम्पल, चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से, प्रभुपाद जी के किताबें पढ़ने से, भगवद गीता एज इट इज, उनके लेक्चर्स सुनने से, तो शुद्धिकरण के और हम जा सकते हैं. सो up to this point we have discussed. I will not go to shloka number 44 today. We will try to do the next 30 shlokas slowly and meticulously.
because they form a core importance in our life. Just one question I would like to cover. Somebody asked me in the due course in this week, why did Veda Vyasa not give Divya Drushti to Dhritarashtra? Why he gave only to Sanjaya? I have already answered this before, but since that person is also attending the session today, I will answer it again. So, वेद व्यास दे सकते थे धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना किया. धृतराष्ट्र refused. He said he didn't want. First of all, he said, I won't be able to recognize my sons. मैं जन्म अंधा हूं, मैंने कभी अपने पुत्र को नहीं देखा. अर्जुन पांडवों को भी नहीं देखा. कौन कौन है ये मुझे पता नहीं चलेगा. मेरे पुत्र कौन है मुझे पता नहीं चलेगा. और यदि पता भी चलेगा, if I come to know also, I don't want to see them die. मैं उनको मरते हुए नहीं देखना चाहता हूं. तो वो तो इसलिए संजय को ये दृष्टिकोण देते हैं, बिकॉज संजय इज अ रिलायबल पर्सन. वो खास आदमी है धृतराष्ट्र का. इज वेरी क्लोज पर्सन टू धृतराष्ट्र. ही इज आल्सो शिष्य ऑफ वेद व्यास. वेद व्यास के शिष्य भी थे. तो सिंस इट मैच्ड ही वाज गिवन. तो जब तक दुर्योधन का मृत्यु नहीं हुआ, उनको एक दिव्य दृष्टि था. उसके बाद वो दिव्य दृष्टि को व्यासदेव ने उनसे हटा दिया. सो टिल दुर्योधन डाइड, he had this Divya Drushti. After that, it was taken away from him. Thank you very much for attending this session. Today, actually, I was tempted to do 2 sessions, but I will not do that. We will go like this, 1 session in a day. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama.